Hello my dear children, you are most welcome in class 12 accountancy. Just you have sent me the problem of calculation of new profit sharing ratio or sacrificing ratio when the new partner is admitted. Now listen it carefully. Suppose that whether the two partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3 or 2:1, a new partner is admitted as 1/4 share or whatever the share so on. You can presume, it is assumed that the sacrificing ratio, in the absence of the information given in the question, what's the share and just the old partner's sacrifices in the favor of new partner, that is not given. In the absence of such information, the old ratio is the sacrificing ratio. Remember. Now whether the other partner just sacrificing their ratio, the existing partner, old partner sacrificing their ratio in the favor of new partners in their particular ratio. Just we have to calculate the new profit sharing ratio. We have to calculate the share of the old partners again. So I would like to tell through the example how this one will be calculated. Now you can see in the questions, sometimes the new partner purchase his share from the old partners in a particular ratio. Suppose that A, B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. Calculation of new profit sharing ratio, you can see. Calculation of new ratio. Just you can see A, B partner, A and B partner, you can see over that. A and B partner, their profit sharing ratio is equal to 7:3. C was admitted with 3/7 share. C, one of the partner, admitted 3/7 share. 3/7 share in the profit which he took from A 2/7 and 1/7 from B, and from B 1/7. Calculate the new ratio of partners. Just we have to calculate the new ratio of partners. Now you can see यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि A और B दो पार्टनर हैं जो अपना रेशियो 7:3 में अपने लाभालाभ को बांटते हैं। अब एक नए पार्टनर का आगमन हो रहा है फर्म में जिसका शेयर 3/7। तो अब 3/7 C को कैसे पा रहा है? 3/7 A से वह ले रहा है 2/7 और B से ले रहा है 1/7। तो न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का क्या होगा? तो अब A का न्यू शेयर जब निकालेंगे आप, तो जो जितना शेयर ये दे रहे हैं उसके बाद जो बचेगा वही शेयर होगा ना। तो आप देखिए इनका पुराना शेयर कितना है? 7/10 और इनका है 3/10। और फ्रॉम से ले रहे हैं, ऑफ दिया रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम दिया रहता है तो माइनस होता है। तो 7/10 से हम 2/7 यदि माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70
10 49 माइनस 20 इक्वल टू 29/70। ये बचा हुआ शेयर है सी को देने के बाद। अब आप देखेंगे बी कितना दे रहे हैं, 3/10 माइनस 1/7 दे रहे हैं। इनका भी उसी तरह से 21 माइनस 10 इक्वल टू 11/17। और सी का शेयर 37 है ही, यहां पर 37 लिख दिया आपने। अब इसका एलसीएम ले लिया 70, तो 29:11:5 ये न्यू शेयर हो गया। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्या है प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन we have to deserve whatever the information and how to calculate the new profit sharing ratio. अब एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे हम उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, लूसी एंड जेनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in 4:3. Suppose that A and B, their profit sharing ratio 4:3. A and B, they admitted C as a new partner for 20% of share in profit. Admitted C 20% of shares. Admitted 20. New partner is admitted, that is being admitted as 20% share. Admitted at 20% share in the profit. C acquired his share of profit in the ratio of 1:2 from A and B. And calculate the new profit sharing ratio of those A, B and C. Suppose that C acquired the profit 1:2. Profit acquired by him 20% equal to 20/100 या equal to 1/5. C शेयर 1/5 है। अब ये 1:2 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है अपने इस शेयर को, 1/5 को 1:2 के रेशियो में। तो A से कितना एक्वायर कर रहा है ये देखना है। एक्वायर्ड फ्रॉम A, एक्वायर्ड फ्रॉम A से कितना एक्वायर कर रहा है, इसका शेयर कितना है 1/5 ऑफ 1:2। 1:2 का है इन लोगों का रेशियो, तो 1/3 एंड 2/3। ये A और B से एक्वायर कर रहा है 1:2 के रेशियो में, तो ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/15। ये A से एक्वायर कर रहा है और B से एक्वायर कर रहा है ये 1/5 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/15। ये B से एक्वायर कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब A का न्यू शेयर, A's न्यू शेयर, अब A का शेयर कितना हुआ, ये जो शेयर दिए हैं वो 1/15, तो 4/7 माइनस
1/50। क्लियर? अब आप देखेंगे 105 60 माइनस 7 इक्वल टू ए का शेयर हो जाएगा 53/105। अब बी का देख लें, उसी तरह से बी का शेयर निकालेंगे तो 3/7 माइनस बी से एक्वायर कर रहा है 2/15 माइनस कर दिया आपने। अब आ गया 105 45 माइनस 40 इक्वल टू 31/105। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए बी सी का शेयर क्या होगा, ए बी एंड सी। ए का शेयर है 53/105, बी का शेयर है 31/105 और उसके बाद 1/5 सी का। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। 105 आपका एलसीएम हो गया 53:31:21। 5 से डिवाइड करेंगे 105 को 20। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस यदि आते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना होता है। ये तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन। अब कभी कभी क्या होता है, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को तीसरा कंडीशन बता दे रहा हूं। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तीसरे कंडीशन में देखिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करने में फर्ज कीजिए कि ये रेशियो में लिए। अब कभी कभी क्या होता है, C acquired suppose that A सरेंडर या C acquired, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है कभी कभी क्या होता है अपने शेयर का कुछ भाग देते हैं और सपोज दैट C is admitted as a new partner, ओनली न्यू पार्टनर, यही इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। C को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के रूप में, इसका शेयर ही नहीं पता है, केवल ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि C को एक अपने शेयर का 1/5 A sacrificed 1/5 of his share and B sacrificed 1/3 from his share। दो कंडीशन दे दिया मैं। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करें। ये 1/5 ऑफ हिज शेयर हो गया एक का और 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या करेंगे ऐसे में, तो इनका शेयर कितना है 4/7 ऑफ 1/5
मतलब ये कितना हिस्सा अपने हिस्से से दे रहे हैं, यही इसका मतलब हुआ। अपने हिस्से का कितना भाग दे रहे हैं, अपने हिस्से का कितना भाग दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये अपने हिस्से का इक्वल टू 4/35 है। अब इनका नया हिस्सा जब निकालेंगे तो 4/7 माइनस 4/35, 35 एलसीएम हो गया 20 माइनस 4, मतलब अब इनका हिस्सा जो बचा हुआ है वो 16/35 है। ये अपने हिस्से से 1/3 दे रहे हैं, अपने हिस्से से 1/3 दे रहे हैं, तो इनका हिस्सा कितना है 3/7 माइनस 1/3। हिस्से का नहीं दे रहे हैं, से दे रहे हैं, तो माइनस कर देंगे। अब ये हो गया 21 9 माइनस 7 इक्वल टू ये कितना दे रहे हैं 2/21। अब इनका हिस्सा क्या होगा 3/7 माइनस 2/21। एलसीएम आपने ले लिया 21, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/21। अब सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा होगा ए कितना दे रहे हैं, सी शेयर इक्वल टू ए दे रहे हैं 4/35, 4/35 प्लस शेयर सेक्रीफाइस बाय बी 3/7, 1/3 from his share. वन थर्ड दिया है तो 1/3 होगा। यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा, ये अपने हिस्से से 1/3 दे रहे हैं, तो 1/3 दे रहे हैं, तो इनका हिस्सा कितना होगा 2/21 ही होगा। यहां पर ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बी का शेयर निकल गया है 2/21। अब 1/3 अपने हिस्से का होता तब ये 2/21 माइनस करते हैं। ये अपने हिस्से से 1/3 दे रहे हैं ना, हिस्से से, तो 1/3। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 105, 12 प्लस 35 इक्वल टू हो गया 47/105 इनका हिस्सा हो गया। क्लियर है। अब आप निकालेंगे ए बी सी का न्यू रेशियो, ए बी एंड सी। यदि ऑफ इस शेयर रहता तो यहां पर ऑफ करने के बाद जो आता तो उसके बाद उसको माइनस करके तब निकालते। फ्रॉम इस शेयर 1/3 दिया ही है, तो 1/3 है ही अपने हिस्से से। अब इसको आप निकाल लेंगे। इनका है 16/35, इनका है बचा हुआ शेयर 2/21 और इनका 47/105। अब आप एलसीएम ले लेंगे 105 48 is to 10 is to 47। ये न्यू रेशियो होगा। 21 से इसको
डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 जा 10, ये 35 से 3 आएगा, 3 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, और ये 1 हुआ 47। न्यू रेशियो होगा 48:10:47। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये अपने हिस्से का दे रहे हैं और ये अपने हिस्से से 1/3 दे रहे हैं, तो हिस्से का निकाले तो मतलब 4/35 दे रहे हैं, तो इनका न्यू शेयर इनके हिस्से से माइनस कर देंगे जितना दे रहे हैं, तो इनका शेयर आ जाएगा 16/35, और ये अपने हिस्से से दे रहे हैं तो 1/3 दे ही रहे हैं अपने हिस्से से, तो माइनस कर देंगे तो बी का शेयर 2/21 हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को जब जोड़ देंगे 4/35 और 1/3 को, तो आप सी का शेयर निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।